Hello friends, it's been a long time I have posted any video about my profit and loss. So today I'm going to show you how I'm going about the trading in future and what are the things I have opted for. Actually, earlier I used to do the option trading. That's how I started my channel and that's how I started my journey as an option writers. Then I started doing some research and market events, government events, corporate events, news and many factors I used to count. Even I have written some programs to do that automatically. Then I used to do the analysis also. Then I used to do the trade. That time I had a sufficient time because the corona period was going on and I was getting a less work from my job and I was able to do so. Then my perspective changed once I got transferred here and then I started getting less time to trade. So what I did, well, I tried to learn the algo. So first I learned the Python and thereafter I learned the algo trading, means how you can do the trading without being in the market. So that was my purpose, that if I can do the trading without being in the market and then I'm making some money making machine. Well, it is possible to certain extent, but you need to do lot of hit and trial. So what I will suggest you, well, I did personally is that I learned it, then I tried to apply it into the market. So once I learned it, so I had to learn some strategy also. So I learned candlestick patterns, then I also learned so many indicators, and then what I chose to do actually, that I tried to leverage my coding for option buying. Then I failed miserably. I made losses. I'm admitting it. Then I shifted my algo to option selling. Well, that was a good view and I was getting a little bit profit and sometimes it was giving me some error and loss was happening. So what I observed, that even if you know the algo trading, then it is not the best approach to just leave it there on the cloud and think that everything will work out. Eventually, some or other reason, your code might fail. It might give some errors, और क्लाउड पे जो चल रहा है हो सकता है क्लाउड से कुछ फेल हो रहा है, सिस्टम की वजह से फेल हो रहा है या मार्केट क्रैश हो जाए, तो उस केस में क्या है, आपको लॉसेस होता है. तो अगर आपको एल्गो आती भी है, then also I'll request you that don't blindly dependent on it. You deploy it, then you also have to monitor it. और उसमें debugging भी करना पड़ता है, कहाँ पर कोड में errors आ रही है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, लॉग्स करने पड़ते सब चीज़ें. तो वेल अगेन फिर मेरे पास सेम चैलेंज आ गया कि मुझे मार्केट में रहना पड़ेगा अगर मैं एल्गो अप्लाई करता हूँ तो भी. तो फिर मैंने क्या किया कि यार ठीक है, एल्गो काम नहीं कर रहा है और एल्गो के लिए मेरे पास टाइम नहीं और मुझे जॉब में तो रहना ही पड़ेगा. देन व्हाट आई डिड एग्जैक्टली कि ठीक है यार, अभी अपन इस चीज़ को और दूसरी चीज़ों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने जो इंडिकेटर्स सारी चीज़ें सीखी थी उसको मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया इक्विटी में. देन आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स एंड इट वाज ऑलमोस्ट यू कैन से सिमिलर टू द ऑप्शन. ऑप्शन में एक ही चीज़ अच्छी होती है कि डे एंड में अगर आप इंट्राडे टाइप कर रहे हैं तो अब डे एंड में आपका पैसा आपके पास आ जाता है. इक्विटी में वो चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ और मैं उसको एकदम से इंट्राडे लेके जा भी नहीं सकता. बट उसमें एक रिलीफ ये होता है कि मेरा जो स्टॉक है ना, बहुत कम स्टॉक है जो साल में नीचे जाएंगे, तो मतलब 1 या 2 का रिस्क ले सकते हैं. बट वहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको एक स्ट्रैटेजी आएगी. तो वो सब मैंने किया और मुझे पता चला कि यार इससे भी बहुत अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है. और मतलब ऐसा है कि आपको दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती. आपने कुछ स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, मतलब डिप्लॉय इन द सेंस कि यू मेड सम इंडिकेटर्स, you made some support and resistance on particular stocks. Once it entered into the range, you buy it. Then once your profit level reach, you sell it. That's it. तो फिर मुझे समझ में आया कि ठीक है यार, ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है. इनिशियली लाइक आई स्टार्टेड इट इन मिड जून. देन फिर मुझे लगा कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है. देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लाइक मोर मनी. तो उस हिसाब से मैंने जब ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया, जब उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर क्या डिसिप्लिन जल्दी हो जाता है. जल्दी कैसे हो जाता है इन द सेंस कि यार यहाँ पर थोड़ा क्या लॉन्ग टर्म गेम है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है. जब पेशेंस होता है तो हमको अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान आउट करने का समय मिल जाता है और हमको एग्रेसिव नहीं खेलना पड़ता है. मतलब हमको वैसा नहीं जाना है कि यार नहीं, मेरे को आज का आज ही सब प्रॉफिट निकालना है. तो उसी हिसाब से जब मैंने उसको एग्जीक्यूट करना चालू किया ना, तो मुझे स्ट्रैटेजीज प्रॉफिट देने लगी और मुझे धीरे धीरे क्या रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है यार, ऐसे भी पैसा बन सकता है. और मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी अप्रोच है उन लोगों के लिए जो लोग मतलब ऑलरेडी किसी जॉब में है, आप फुल टाइम ट्रेडिंग को नहीं दे पाते. तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है मेरे हिसाब से. और ये जो रिटर्न्स आ रहे हैं ना, वो मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छे हैं. मैं आपको अपना वेरीफाइड PNL का लिंक भी दे दूंगा. बट इससे पहले मैं चाहूँगा कि चलो ठीक है, हम देख लेते कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम अर्निंग. तो ये मैंने अपना ओपन कर लिया है जीरोधा का अकाउंट. मैं अपने मम्मी के अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ फॉर सम रीज़न. तो हम लोग चलते हैं. ओके, आई जस्ट रिफ्रेश इट. ठीक है, ये रिफ्रेश हो गया.
और हम गए यहाँ पर चले जाते हैं, फिर हम जाते हैं कंसोल में। कंसोल में हम देख ले, चलो लास्ट मंथ का देख लेते हैं। मैं आपके साथ में PNL वेरीफाइड लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आपको अच्छा रहेगा, आप भी कभी भी जाके चेक कर सकते कौन से महीने में कौन से डे में कब प्रॉफिट क्या क्या किया, सब चीज़ें, तो आपको भी बेटर रहेगा। वेल लेट्स सी। तो अपन रिपोर्ट्स में गए, PNL में गए, लास्ट मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट मंथ मीन्स दिसंबर 23। मैं आपके साथ में वैसे भी PNL शेयर कर दूंगा, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, बाद में देख लेना। चलो ठीक है, ये जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो अराउंड मैंने जो दिसंबर में 1.27 लैक्स बनाए, जो कैपिटल इन्वॉल्व था वो अराउंड 20 to 23 लैक्स का था। तो उसको देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न है, और मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हर महीने बनाऊंगा, बट मैं आपको एक और एश्योरिटी दे देता हूँ कि आप उससे है ना अराउंड आपके पास 20 लैक्स कैपिटल, आप 50,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिसेंटली, विदाउट लाइक कि बहुत ज़्यादा मार्केट में जाए, अगर आपके पास नॉलेज बहुत सटीक है और आप अपने रूल्स फॉलो करते हैं तो वह डेफिनेटली ठीक है। मैं इतना ज़्यादा रिटर्न आपको बोल नहीं रहा हूँ, ये तो चलो ठीक है, एक महीने में हो गया, इससे पहले और उससे पहले जाएंगे तो अराउंड लाइक कभी 65 हो जाता है, कभी 55 हो जाता है, कभी 60 हो जाता है। तो 50 का आप एवरेज पकड़ के चलिए, और ये कंपाउंडिंग होता रहता है, तो यूँ समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब आज आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो कल उसको फिर से आप इन्वेस्ट करेंगे, तो अगेन वो जो आपने अर्न किया है प्रॉफिट, वो और कुछ प्रॉफिट ला के देगा। तो ये इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आपको कंसिस्टेंट आपको रिटर्न्स कमाने हैं, आपको म्यूचुअल फंड में जाना है, क्योंकि नहीं जाना है, क्योंकि वो लॉकिंग पीरियड भी होता है, प्लस वो लोग अपना खुद का कमीशन रखते और उतना ज़्यादा गेन नहीं दे पाते, बट यहाँ पर अपने को अच्छा खासा चीज़ें मिल जाती है।